Hello children, welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. I am Amit Toshniwal, your accounts teacher. This video is for class 11th. Subject is accounts, chapter number 10, rectification of errors, part 3. In first two parts, we have learnt the types of errors based on principles, errors of commission, errors of omission, errors which are disclosed or not disclosed by trial balance or happened in trial balance, and single sided and double sided errors. So after studying the types of errors, this is the time for their rectification. How the errors are rectified through rectifying entries, for which a journal proper is made and all the adjusting, omitting and rectifying entries are done to make them correct. So for which we'll go with one example. Taking one example, you can see example number 5 given on page number 310 in your book. So I will describe each and every transactions when it is corrected. Question is, following errors were detected after the books were closed. How will you rectify? So what is the first error? Rupees 250 paid for salaries was recorded correctly in the cash book but posted to salary account as rupees 50. You will not be capable of rectifying errors until and unless you are well aware and master in making journal entries on the basis of traditional approach. Remember my point. If you have to be master or excel in doing accounts, then you will have to make your background, your concepts of journal very strong. Otherwise it will not be possible for you. So note my point, then only you can understand. Anyway, we'll discuss. This is the suggestion for each and all, especially to those who have not gone through the earlier PPTs and videos sent by school. So first you go through that, otherwise you cannot take benefit of all these. Okay, so see, सैलरी के लिए 250 पे किए, लेकिन लिखे कितने रुपए? 50 रुपए. तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का जो नियम है ट्रेडिशनल अप्रोच का, वो कहता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. तो सैलरी को डेबिट होना था 250, लेकिन उसको हमने किया 50. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? 250 minus 50 is equal to 200 rupees written less in salary account. So we will debit salary account with rupees 200, and when error was not detected, then we opened suspense account. So suspense account was debited. So therefore we will write to close it when error is detected. So we will credit it. तो आपकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट 200 रुपये. कहाँ से? सस्पेंस अकाउंट से. तो टू सस्पेंस अकाउंट. दिस इज़ फर्स्ट एंट्री. सेकेंड इज सेल्स बुक हैज़ बीन एडेड रुपीज़ 800 शॉर्ट. तो अब आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट. फॉर विच यू नीड टू learn the table which I have shown you for chapter number 9 while you were making trial balance. तो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है या टोटल, वो हमेशा क्रेडिट होता है. तो सेल्स अकाउंट को 800 रुपये कम अपन ने किया,
तो अपन को उसमें 800 रुपये और लिखना है, इसलिए सेल्स अकाउंट में 800 रुपये और आएंगे 2 करके, और उसके अगेंस्ट में क्या रहेगा, सस्पेंस अकाउंट रहेगा डेबिट में 800 रुपये से। तो हमारी जनरल जो रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री होगी वो बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹800 एंड सेल्स अकाउंट 800 क्रेडिट में। जो कम थे वो अपन ने एक्स्ट्रा, जो अपन ने कम लिखे थे उसको सुधार किया और 800 रुपये अपन ने क्रेडिट में और लिखे। नंबर 3 इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बैलेंस ₹160 was omitted to be entered in ट्रायल बैलेंस। तो जब आप लिखना चाह रहे थे तब आप 160 रुपीज़ आप लिखना भूल गए, छूट गया वो लिखने से ट्रायल बैलेंस में। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में होता है ट्रायल बैलेंस में। तो ये भी एक एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट होगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹160 और अगेंस्ट में क्या रहेगा, 2 सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। देन 4th, ₹200 फॉर कमीशन रिसीव्ड, इट वॉज ओमिटेड फ्रॉम द कमीशन अकाउंट। तो कमीशन जो मिला है वो बिजनेस का रेवेन्यू है, और जितने भी रेवेन्यूज़, गेंस या इनकम होती हैं वो हमेशा क्रेडिट होती हैं। नॉमिनल अकाउंट यानी ट्रेडिशनल अप्रोच का 3rd जो रूल है नॉमिनल अकाउंट का, यदि उसको अपन देखेंगे जर्नल में, मैं इसलिए यहाँ बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों ने पहले के वीडियोज़ या चैप्टर्स को फोकस ना किया हो, इसलिए मैं उसको बार बार कह रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना और उससे सीखना। तो पहला क्या हुआ तुम्हारे पास कि कमीशन जब मिला तो वो बिज़नेस का प्रॉफिट था, इसलिए वो 2 में आना चाहिए था, लेकिन वो लिखने से छूट गया। कमीशन क्रेडिट में होगा, 2 यानी क्रेडिट। तो 2 कमीशन अकाउंट 200 और अगेंस्ट में क्या रहेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200, सॉरी, अमाउंट इज़ करेक्ट। नाउ 5th इज़ ₹300 received from Ayush was debited to his account as 30। तो आयुष से हमको 300 रुपये मिले, लेकिन हमने उसके अकाउंट को 30 रुपये से डेबिट कर दिया। तो आयुष गिवर है, क्या है, गिवर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो फर्स्ट रूल है पर्सनल अकाउंट का, वो कहता है गिवर इज़ क्रेडिटेड। तो आयुष को 300 रुपये से क्रेडिट करना था, तो वो तो अपन ने किया नहीं, बल्कि उल्टा अपन ने क्या कर दिया, उसको 30 रुपये से डेबिट कर दिया। तो 2 गलतियां हो गई, 300 रुपये से क्रेडिट नहीं किया, वो करना है, और 30 रुपये से गलत डेबिट कर दिया। तो डेबिट जब किया है तो उसको ठीक करने के लिए 30 रुपये से उसको और क्रेडिट करना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 330। 300 जो नहीं किया वो, और 30 जो गलत डेबिट हुआ है उसको सुधारने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो 300 + 30 बिकम्स 330। तो टू आयुष 330 और अगेंस्ट में सस्पेंस अकाउंट इज़ डेबिटेड। ये हमारे पास एंट्री होगी इसकी। तो ये जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये सिंगल साइडेड एरर्स हैं। कौन सी एरर्स हैं, सिंगल साइडेड। जब सिंगल साइडेड एरर्स होती है तो उसके अगेंस्ट में हमेशा सस्पेंस अकाउंट रहेगा, या तो डेबिट में या क्रेडिट में, एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं डबल साइडेड एरर्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 15 जो आपकी बुक में पेज नंबर 332 पर है। तो आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी है आपके पास, आप देखेंगे। अब यहाँ पर हम डबल साइडेड एरर्स भी देख रहे हैं कि किसी ट्रांजैक्शन का डबल साइड एरर्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन जो गलती हुई थी, सेल्स बुक रिटर्न को टोटल हमने शॉर्ट यानी कम किया है 200 से। तो सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न है वो अकाउंट हमेशा डेबिट होता है।
तो डेबिट में 200 रुपये शॉर्ट हैं, तो शॉर्ट हैं तो मतलब उसको हमें वापस बढ़ाना पड़ेंगे। तो सेल्स बुक रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 200, उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे अकाउंट पे गया ही नहीं। इसका मतलब है ये सिंगल साइडेड एरर है, और जब सिंगल साइडेड एरर होती है तो उसके अगेंस्ट में हमेशा सस्पेंस अकाउंट रहेगा। तो टू सस्पेंस अकाउंट, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी ये पहली वाली रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। फिर नंबर 2, कैश पेड टू अनिल ₹5,500 was debited to the account of Sunil as ₹5,000। तो जब हमने अनिल को कैश पे किया, कितना, 5,500, तो अनिल को डेबिट होना था, लेकिन वो हमने किसके उसमें डेबिट कर दिया, सुनील के इसमें। तो यहाँ पर देखो 2 प्रकार की गलतियाँ हुई हैं, पहला अकाउंट की और दूसरा अमाउंट की। अकाउंट की गलती क्या हुई, अनिल की जगह सुनील को डेबिट किया है, और अमाउंट 5,500 की जगह 5,000 ही किया है। तो 2 गलतियां होंगी। तो सबसे पहली गलती का सुधार, अनिल को टोटल पैसा कितना दिया है, 5,500, तो अनिल को डेबिट तो होना ही था 5,500 से, है ना। तो हम उसे डेबिट कर दें 5,500 से सबसे पहले। अब दूसरी गलती का सुधार कैसे होगा, सुनील को डेबिट कर दिया है जो कि होना ही नहीं था, इसलिए उसे क्रेडिट करो, तो वो जो गलती है वो नलीफाई हो जाएगी, मतलब वो नल हो जाएगी, कट जाएगी। तो टू सुनील 5,000, अब डिफरेंस कितने का बच रहा है, 500 का। तो फिर वो इम्पैक्ट किस पे गया होगा, जब गलती नहीं मिली होगी तो हमने क्या खोला होगा, सस्पेंस अकाउंट। तो टू सस्पेंस अकाउंट 500। तो हमारे पास ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, अनिल डेबिट 5,500 टू सुनील 5,000 और टू सस्पेंस अकाउंट 500। फिर तीसरा, टाइपराइटर ख़रीदा गया 3,000 रुपये का उधारी पे, लेकिन वो हमने डेबिट कर दिया है परचेस अकाउंट में। टाइपराइटर बिजनेस की असेट है और परचेस में हम लिखते हैं केवल गुड्स। तो गुड्स, हमने उसको गुड्स मान लिया और परचेस अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया है। तो परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होना था, इसलिए परचेस अकाउंट को क्रेडिट में लिखना होगा, और जो चीज़ एक्चुअली डेबिट होना थी उसे हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट क्या होना था, असेट्स यानी कि टाइपराइटर। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, और जो चीज़ नहीं होना थी उसे कर चुके तुम, यानी कि परचेस अकाउंट को, तो उसे क्रेडिट में लिखोगे टू परचेस अकाउंट 3,000। तो वो गलती सुधर जाएगी, है ना। गलत अकाउंट में आपने उस पैसे को लिख दिया था, तो उस अकाउंट से उस पैसे को निकाल लो। नंबर 4, गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर यूज फॉर ₹2,000 वॉज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। यहाँ पर फिर 2 गलतियाँ हुई हैं। पर्सनल यूज़ के लिए जो गुड्स लिया जाता है वो ड्राइंग्स कहलाती हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना था, जो तुमने नहीं किया। तो पहले तो सबसे पहले वही करो जो होना है, यानी ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करो 2,000 से। अब किस अकाउंट को डेबिट कर दिया तुमने, परचेस को। तो जिसको डेबिट कर दिया उसकी गलती सुधारने के लिए उसे क्रेडिट करो, तो यानी टू परचेस अकाउंट, ये इससे गलती ठीक हो जाएगी। नंबर 5, डेप्रिसिएशन लगा है फर्नीचर पर 1,200 का, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हो गई है ओमिशन की गलती, यानी छूट गई है ये, है ना। मतलब ये ट्रांजैक्शन या ये एंट्री हुई ही नहीं। जो एंट्री नहीं होती है यानी ओमिशन वाली, तो उसकी एक्चुअल करेक्ट एंट्री ही हम रेक्टिफाइंग एंट्री मानते हैं। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का क्या है, लॉस, यानी किसी असेट्स में उसके कीमत में होने वाली कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। किस में से कम हुआ है ये डेप्रिसिएशन, किस पे लगा है, फर्नीचर पे, तो टू फर्नीचर। तो हमारे पास एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये आपके पास डबल साइडेड एंट्री, जो डबल साइडेड एरर्स हैं उनकी एंट्रीज़ हैं। अब आप 5th और 15 इनके बीच बेस पर
जो सिंगल साइडेड और डबल साइडेड एरर्स हैं उनकी गलतियों को आप देखेंगे। इसके बाद एक वीडियो और होगा सस्पेंस अकाउंट को बनाना और उसको क्लोज़ करना या कैश बुक बनाना, तो वो आपका लास्ट वीडियो होगा इसका, ठीक है। तो मीनवाइल you start doing some practicals and numerical questions of this lesson. Thank you.